हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अर्नोल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, विजयनगर, इंदौर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन ऑल्सो यू हैव टू कमेंट। जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और उसके बाद ही उसका फल देना या नहीं देना ये ईश्वर पर निर्भर करता है। पर हमें अपने कर्म से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 11th क्लास का वेक्टर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, वेक्टर वेक्टर इज very very important. Actually, why vector is important, you know very well. If a particle or an object is moving in one direction or in one plane, then it has only two directions, maybe the direction forward or maybe the backward direction. It means you can discuss the position or direction of the particle only in one way. But you know very well, we have a motion of particles or object in two dimensionals also and three dimensional, xy axis or xyz axis. And if a particle or object is moving in, suppose in xy plane, this is x and this is y, so the particle has many directions. Or in three dimensional, maybe infinite number of directions. Now, how to discuss them, how to define them? And so we need a vector quantity. Because if we are not using vector quantities and if we add or subtract these quantities only with the help of our scalar law, then maybe we can get, or not maybe, surely we are going to get the wrong or different results. It means we need a separate class for vectors. It means the quantities which possess both magnitude and directions. So I am giving you that how many types of physical quantities are here. So if you have a physical quantity, already I know that we have discussed that physical quantity is a quantity which represents the magnitude or the position or the measurement of physics. Actually, in physics we need measurement in order to establish, in order to discuss a quantity. Now, for measuring we need some quantities, and those quantities are known as physical quantities. So physical quantities, here we have the first physical quantity, that is known as scalar quantity. The first quantity is known as scalar quantity. Now, what is scalar quantity? स्केलर क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, मैं हूं क्योंकि मेरा मैग्नीट्यूड है इसलिए मैं हूं. इट मीन्स ए क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. इसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, बट नो डायरेक्शन. बट नो डायरेक्शन is called a scalar quantity. A scalar quantity, right? If you want to find some examples, then the first example is very very easy. Mass. आप जानते हैं मास है, मेरा मास है, तो माई मास इज सेम इन ऑल दी डायरेक्शन. ऐसा नहीं है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरा मास डिफरेंट हो जाएगा. देन लेंथ ऑल्सो, लेंथ डज नॉट चेंज. इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, नॉट डिस्प्लेसमेंट. ओके. देन टाइम. ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज और भी बता देता हूँ स्केलर में, जैसे वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, या बाद में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, etc.
So the quantities which does not possess any direction, they are scalar quantities. In the same way, we have second number quantity, vectors और वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी लिखता हूं, चलिए, है ना. सो ए फिजिकल क्वांटिटी, यहां भी फिजिकल लिख सकते हैं हम लोग. ए फिजिकल क्वांटिटी which possess both magnitude as well as direction. आपको दिख नहीं रहा हो तो देखिए. A physical quantity which possesses both magnitude as well as direction is called a vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में इसमें डायरेक्शन भी है. और इसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ, अभी बाद में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन थॉरोली. सो सबसे अच्छा मुझे एग्जांपल लगता है इसका डिस्प्लेसमेंट. देन डिस्प्लेसमेंट से क्या बनता है आपको याद होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ऐसे बहुत सारे हैं. इन द सेम वे यहाँ भी मुझे बताना चाहिए था आपको कि अगर इसकी हम ले तो डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस से क्या बनता है, स्पीड. ये भी स्केलर क्वांटिटीज है. सो वी हैव टू क्वांटिटीज. एक क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और क्वांटिटी होती है, थर्ड, and that third quantity is known as tensor. So मेरे प्यारे बच्चों, tensor is that quantity whose magnitude is different in different directions. जैसे आप गर्मी में आए हैं और आपने पानी के अंदर शुगर डाली और थोड़ा सा लाइम डाल लिया, नींबू, और उसको मिक्स कर लिया. उसके बाद भी आप देखेंगे कि द कंसंट्रेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. कहीं पे आपको नींबू के पार्टिकल्स या शुगर ज़्यादा दिखाई दे रही होगी अगर घुली ना हो तो, कहीं पर कम. इसी तरह गंदा पानी है तो उस पानी के अंदर कहीं पर डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, कहीं पर कम है. इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया वहाँ पर मीडियम का. ओके, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ. ए क्वांटिटी whose magnitude is different in different directions is called a tensor. और टेंसर के एग्जाम्पल्स भी हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया भी था, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, फिर से लिख देता हूँ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे आप म्यू से या एन से बताते हैं, आजकल एन बताया जाता है. ओके, एक और होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे हम आई से बताते हैं. दिस एक्चुअली वी आर गोइंग टू यूज इन रोटेशनल मोशन. ठीक है. एक चीज और यहाँ है कि एक और स्केलर क्वांटिटी होती है, मुझे याद आ गई थी अभी, करंट. बच्चे मानते नहीं है इसको. बिकॉज करंट हैज डायरेक्शन, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. बट there are two types of current. One is electronic current and second is conventional. Conventional is from positive to negative and electronic is from negative to positive. If you add current scalarly, then your result is always same. There is no problem. It means
current does not follow the vector law of algebra. If a quantity has magnitude and direction, it does not mean that it is a vector quantity. It should follow the vector law of algebra. और करंट जो होता है इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. अगर आपके पास एक पिन है और वहाँ से आप बहुत सारे वायर्स निकाल के एक सीरीज भी चला रहे हैं, प्रेस भी चला रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, तो क्या सब में करंट डिफरेंट होती है? नो, द सेम करंट इज कमिंग हियर. इट मीन्स द एंगल बिटवीन द वायर डज नॉट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. तो जब एंगल अफेक्ट नहीं कर रहा मतलब वो क्वांटिटी वेक्टर हो ही नहीं सकती. दैट क्वांटिटी इज स्केलर. तो करंट इज ए स्केलर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको 3 बातें बता चुका हूँ: स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज एंड टेंसर. एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर क्वांटिटीज इन डिटेल. तो मैं आपको वेक्टर के बारे में बताता हूँ कि how a vector quantity represent. First of all, if you have a quantity which is a vector quantity, then उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, डायग्रामेटिकली कैसे बताएंगे. तो अब मैं वेक्टर के ऊपर आ रहा हूँ, पूरा वेक्टर ही पढ़ेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर का नाम एक्चुअली इट इज टेकिंग फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एंड दैट इज कैरियर. ये याद रखें आप. सो सपोज दिस इज ए लाइन. नाउ दिस लाइन इज ए स्केलर और वेक्टर. इट इज श्योरली ए स्केलर क्योंकि इसकी तो डायरेक्शन ही नहीं है. अब मैंने यहाँ डायरेक्शन बना दी, यानी ये तीर बन गया हमारे अर्जुन का. तो अब ये बन गया वेक्टर. एंड दिस इज नोन एज, इसको ओ नाम दे दिया मैंने, दिस इज ए एंड दिस इज टेल और स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट. बच्चों क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट. एंड दिस इज नोन एज हेड. इसको हेड कहते हैं. हेड और टर्मिनल या टर्मिनस बोलता हूं मैं, तो टर्मिनल भी बोल देता हूं. चलो, टर्मिनल पॉइंट. ओके. नाउ इट मीन्स ए वेक्टर हैज ए टेल एंड वेक्टर हैज ए हेड ऑल्सो. विदाउट हेड इट इज नॉट ए वेक्टर. अब इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे. ओए है, ओए के ऊपर तीर लगा दिया, दिस इज वेक्टर. या इसको ओए के ऊपर ओनली वी ड्रॉ ए लाइन और वी राइट OA इन बोल्ड लेटर्स. अगर इसका पूरा नया नाम लिखना चाहें, सपोज ए लिखा, ए, तो ए वेक्टर या ए, या बोल्ड इन बोल्ड लेटर से. द लाइन ओवर OA रिप्रेजेंट्स इट्स लेंथ यानी मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो गिव्स द डायरेक्शन. सो एनी वेक्टर इज शोन बाय दिस. एन एरो शुड बी देयर एंड ए टेल और स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी देयर. ओके. तो अब हम आगे जाते हैं कि वेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वी हैव. सबसे पहले आपको ये बताता हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. तो बच्चों को वैसे बुक में भी मिल जाता है, लेकिन मैं एक थॉरोली बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. अगर आप इस पूरे वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आपको हमेशा ये समझ में आ जाएगा कि वेक्टर्स के टाइप्स कैसे होते हैं. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. सबसे पहली बात बता दूं, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल वेक्टर्स. चलिए, इक्वल वेक्टर्स. तो एज द नेम सजेस्ट, द वेक्टर्स हुज, मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लोग सुन लें. द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम. द वेक्टर्स whose magnitude and directions are same are called equal vectors. ये equal vector है. देखिए, ऐसा भी हो सकते हैं. This is A vector and this is B vector. Both are along the same line. So these are equal vectors. Their direction should be same. So vectors whose magnitude and direction is same and they are acting along the same line are called equal vectors.
ऐसे ही अनइक्वल भी हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर्स। तो अनइक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे? जिनका मैग्नीट्यूड या तो अलग हो, ये देखो मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, और मे बी their direction is different. Okay, so unequal vectors are those vectors whose magnitude as well as direction or both are unequal, both are in the different directions, right? So unequal vectors हुआ. Then we have negative vector. नेगेटिव वेक्टर क्या है? तो नेगेटिव आपने पिक्चर्स में देखा होगा, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बुरा। तो जो बुरा है वो नेगेटिव वेक्टर है, लेकिन वो हमेशा कंपेयर किया जाएगा फर्स्ट वाले से। इट मींस नेगेटिव वेक्टर इज ऑलवेज कंपेयर विथ ए वेक्टर। अगर एक वेक्टर ए है, सपोज यू हैव ए वेक्टर ए, दिस इज, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, इसका उल्टा, magnitude is same but direction is different. So a negative vector is a vector whose magnitude is same but direction is opposite to that of the given vector. फिर से बता रहा हूं, a negative vector is a vector whose magnitude is same but direction is different from the गिवन वेक्टर। तो ये इसका अपोजिट वेक्टर हो गया, इसे हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। देन वी हैव पोजीशन वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, बहुत सारे हैं। तो पहले मैं आपको एक पोजीशन वेक्टर के बारे में बताता हूं। नंबर 3 है, शायद नंबर 4 है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? You know very well in physics, a body or an object or a particle is moving in the space, and in the space we have to find its position, और वो पोजीशन वेक्टर से मिलती है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, एंड सपोज पार्टिकल या एरोप्लेन हमारा यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है, गलवान के ऊपर। तो इसको हम किससे ज्वाइन कर देंगे? वी आर गोइंग टू ज्वाइन इट विथ ओरिजिन। ये एंगल बना रहा है सपोज थीटा, इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं हम, एक्स वाई। इफ इट इज इन 3 डायमेंशनल, इट इज एक्स वाई जेड। सो पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो लोकेशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज लोकेशन वेक्टर और radius vector. It is also location or radius vector. It tells us the position of an object or particle in space. लेकिन कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो लाइन भी ज्वाइन कर दी, तो हम इसको रेडियस वेक्टर के टर्म में भी लिखते हैं। It is a line joining the particle या vector joining the particle with origin origin के साथ इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो इस लाइन को भी हम रेडियस वेक्टर कहते हैं। ओके, एंड रेडियस वेक्टर को कैसे बताएंगे हम? रेडियस वेक्टर ओपी वेक्टर हुआ ये। तो रेडियस वेक्टर गिव्स नॉट ओनली द डिस्टेंस बट ऑल्सो डायरेक्शन। ओके, तो पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आफ्टर पोजीशन वेक्टर वी हैव ए वेक्टर दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 5th नंबर या 6th है शायद, displacement vector. So suppose sometimes numbering is different, or maybe is there any mistake in the spelling, please avoid it.
Okay, so displacement vector, this is x-axis, this is y-axis. Actually, displacement vector tells us about the new position of an object in space after a time interval t or after a time interval t dash. So suppose initially the particle is here at point P and its coordinates are xy, वो कुछ भी हो, and this is position vector and this is suppose r1. Okay, now after time t, this is suppose at time t. Now after a time interval, सब पार्टिकल तो मूव करेगा ही, पार्टिकल q पे आ गया और इसके सपोज ये x1 y1 थे, now coordinates are x2 y2. So this is now new position r2 at time t dash. कौन से टाइम पर t dash. तो इसका पार्टिकल की न्यू पोजीशन q है, तो फ्रॉम हियर वी ड्रॉ ए लाइन एरो ऐसा, इसे कहेंगे pq and this pq is nothing but displacement vector. pq is nothing but displacement vector. Okay, so a displacement vector is the position and direction of a particle or an object after a particular time interval, or the position vector gives us that how much distance it traveled along a direction after a time interval. Position vector tells us how much distance is traveled by a particle in any direction after a particular time interval. तो ये अभी बहुत आगे काम में आने वाला है आपको, इसमें ट्रायंगल लॉ भी लगता है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे. देन वी हैव पोलर वेक्टर्स. ये भी कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि पोलर वेक्टर्स क्या है. So polar vectors are those vectors whose starting point is fixed, or the vectors which possess a starting point are called polar vectors. And polar vectors describes the translation motion. Polar vector जो होते हैं वो translation motion को describe करते हैं, and they have a starting point. इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो ट्रांसलेशन है. तो इनके एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही रहे होंगे. फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. अरे सीधे सीधे बात है यार कि जितनी ट्रांसलेशन मोशन के लिए हमारे पास वेक्टर्स हैं, दे ऑल आर पोलर वेक्टर्स. सिमिलरली अभी देखिए मुझे गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चला रहा मैं, क्योंकि पंखे की आवाज़ वीडियो में आ जाएगी. तो पंखा जब चलता है तो रोटेशनल मोशन होता है. तो सिमिलरली वी हैव 8th नंबर नाउ, एक्सियल वेक्टर्स. सो एक्सियल वेक्टर्स दे describes rotational motion. They describes rotational motion and their direction is always along the direction of rotational axis from right hand screw rule. कौन सा रूल है ये? राइट हैंड स्क्रू रूल से हम पता लगाते हैं. सो ये रोटेशनल मोशन के बारे में बताते हैं, और इनके एग्जांपल्स अगर आप देखें तो इनके एग्जांपल्स होते हैं, टॉर्क होता है, टाउ कहते हैं जिसको, एंगुलर मोमेंटम होता है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो खैर उसमें चला जाता है, देन एंगुलर मोमेंटम ले लिया, टॉर्क ले लिया, और भी जितने भी हमारी रोटेशनल मोशन की क्वांटिटीज़ होती हैं उन सारी क्वांटिटीज़ को हम एक्सियल वेक्टर्स में कहते हैं.
there is a difference between the axial vectors and polar vectors. In axial vectors, the sign changes if the coordinate axis changes with a new system by the reflection of origin. अगर ओरिजिन के रिफ्लेक्शन से आप एक नया सिस्टम लो और कोऑर्डिनेट एक्सिस की पोजीशन नए सिस्टम में चेंज हो जाए तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. बट इन पोलर वेक्टर इट डज नॉट हैपन्स बाय द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम. देयर इज नो चेंज इन द साइन. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों के बीच में. देन अब काफी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं. हमारे पास एक होता है कोलिनियर वेक्टर्स. पता नहीं मैंने कोलिनियर शायद बताया नहीं अभी. 9 कोलिनियर वेक्टर्स. तो कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which are parallel to each other or which are in the same direction or which are in the opposite direction or which are anti-parallel. ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं. सो कोलिनियर वेक्टर्स आर, मैं देखिए डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ. अगर आप लिखना चाहें तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप बाद में लिख सकते हैं साथ साथ में. एंड ऑलवेज आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स that when you watch any video always keep a copy and pen with you. और अगर आपको लगता है कि ब्लैक बोर्ड पूरा भर गया आप लिख नहीं पाए तो आप उसका शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट ले लें. ठीक है. सो कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर इन द सेम डायरेक्शन और पैरेलल और एंटी पैरेलल. अगर पैरेलल होंगे तो पैरेलल वेक्टर्स होंगे एंड दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स बट बोथ आर collinear vectors. It means theta equal to 0 between them or theta equal to 180 between them. That is nothing but collinear vectors. Collinear vectors के बाद हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है नल वेक्टर. नल वेक्टर, नल वेक्टर को हम जीरो कहते हैं, उसके ऊपर एक एरो लगा दिया. नल वेक्टर why what is the need of null vector? ये तो जीरो हो गया. Actually when some simplification, some algebraic, हम इनके बीच में वेक्टर्स के बीच में कुछ अलजेब्रा का यूज करते हैं, means in subtraction or addition or maybe in subtraction only, the two vectors they are equal and then equal to 0. If we are writing 0, that is a scalar quantity and we are discussing vector algebra. It means the subtraction of two vectors or 0 should also belongs to a vector family. इसीलिए हम नल वेक्टर को डिस्कस करते हैं क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा के लिए एक अलग होना चाहिए. सो इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर whose magnitude is negligible and direction is arbitrary or undefined. ये ऐसा वेक्टर है whose magnitude is negligible and direction is arbitrary or undefined. arbitrary यानी किसी भी डायरेक्शन में और undefined यानी हमें पता ही नहीं है. And it is denoted by this. Then we have unit vector. बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है ये और ये बहुत ज्यादा आपको काम में आएगा. Unit vector is a vector whose magnitude is unity and direction is same as that of the given vector. It is a vector, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूं. इट इज ए वेक्टर whose magnitude is unity and direction is same as
that of given vector, it is denoted by a cap और ए हैट। इसे कैप या हैट से बताया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसी से अब आपको समझ में आएगा कि वेक्टर है क्या यार। देखिए, सपोज यू हैव ए वेक्टर ए, ये वेक्टर है। तो वेक्टर में होता क्या क्या है? वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड and direction. So if you have a vector A, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय ए कैप। कैप लगा दी हमने। जैसे कि मैं स्केलर हूं अभी, तो आप मुझे एक कैप पहना दीजिए। ये देखो, एक कैप पहना दी आपने मुझे, ये पहना दी, और इस कैप में आपने ये एरो लगा दिया। अब मैं जहां भी जाऊंगा ये एरो मेरी क्या बताएगा? डायरेक्शन, यानी मैं वेक्टर बन गया। तो आपको किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे? उस क्वांटिटी को एक कैप पहना देंगे, हैट पहना देंगे, जो उसको डायरेक्शन बताएगा। और ये कैप जो है, इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यानी इट डज नॉट इंक्रीजेस माय मैग्नीट्यूड। सो ए वेक्टर इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं, देखिए ये भी बताऊंगा मैं क्या होता है। It means if you have to find a unit vector, you have to divide the vector by its magnitude. अगर वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, so you will get the unit vector. But you know very well we have three directions, x direction, y direction, z direction. तो सभी में क्या एक ही वेक्टर होगा यूनिट? No. If you are moving along x axis, then you have a I यूनिट वेक्टर। इफ यू आर मूविंग अलॉन्ग, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, दिस इज सपोज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। सो इफ यू आर मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, देन यू नीड ए वेक्टर जो आपको डायरेक्शन डिफाइन करे, तो वो यूनिट वेक्टर होगा। तो हियर यूनिट वेक्टर इज आई कैप, वाई एक्सिस में होता है जे कैप, एंड हियर वी हैव के कैप. It means I, J and K, they are unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. So if a vector is moving along x-axis, suppose A vector जो है वो x की तरफ जा रहा है, 2 मैग्नीट्यूड है, तो उसको लिखेंगे 2i। B वेक्टर x भी जा रहा है और y भी जा रहा है, तो सपोज 3i plus 4j। वन मोर वेक्टर विच इज इन 3 डायमेंशनल स्पेस, तो तीनों का मैग्नीट्यूड होगा उसका, सपोज 4i प्लस 5j प्लस 6k। 4 5 6 मन से लिया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज ए वेक्टर इन 1 डायमेंशन, दिस इज ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन, दिस इज ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तीनों में ही आ गया हमारा। ओके, तो यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। और यहाँ एक नई क्वांटिटी आई थी, मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस। तो मैं आपको मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस भी बता रहा हूं कि क्या होता है। मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज द लेंथ और डिस्टेंस ऑफ द वेक्टर। The length of vector is magnitude or modulus, and it is denoted by a vector ऐसा या a, आपको बताया भी था मैंने। The magnitude is this one. Okay, then we have co-initial vectors। हमारे पास co-initial vectors भी होते हैं। The vectors whose initial point is same। initial मतलब एक ही पॉइंट है। जैसे बहुत सारी गाय हैं और आपने उनको क्या किया, एक पेड़ से रस्सी से अलग अलग बांधा हुआ है, तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर।
इन सबका इनिशियल पॉइंट सेम है O, so they are known as co-initial vectors. Similarly, we have co-terminus vector. We have co-terminus. तो co-terminus में क्या होगा, जिनके टर्मिनल पॉइंट सेम है। जैसे आपने कहीं पर खाना डाला और बहुत सारे एनिमल्स आ गए और एक साथ खाने लग गए, तो उनका मुंह एक जगह चिपक गया है। जैसे कि फुटबॉल का मैच होता है या रग्बी, तो सारे खिलाड़ी आ जाते हैं और आपस में सिर झुका के ऐसे चिपका के खड़े हो जाते हैं, तो उनकी टेल अलग हो जाती है और हेड एक ही जगह आ जाता है, तो वो होते हैं को टर्मिनस। ये देखिए सब एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, को टर्मिनस। So coterminous vectors are those vectors whose terminal point or head is at the same point. Okay. Then मेरे ख्याल से मैक्सिमम वेक्टर्स मैं आपको बता चुका हूँ, इक्वल, अनइक्वल एंड कोटर्मिनस, हेड, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई वेक्टर बचा है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो एक फ्री वेक्टर भी होता है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज एंड, उसका टर्मिनल पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे कह दिया ना, ये तो कहीं भी चला जाता है। जो अपने घर से बंधा हुआ है वो फिक्स्ड वेक्टर हुआ, और जो नहीं बंधा वो फ्री वेक्टर है। तो फ्री वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज टेल इज नॉट प्रेजेंट। वैसे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कि टेल इज नॉट प्रेजेंट ऐसा मैं बोलूं जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, यानी हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इसे हम कहते हैं फ्री वेक्टर। अगर फ्री वेक्टर होगा तो फिक्स्ड वेक्टर भी जरूर होगा। सो देयर इज ए वेक्टर fixed vector and it is also known as localized vector. Localized vector यानी whose tail is fixed. A vector whose tail is fixed is called a fixed vector or localized vector. Okay. दो वेक्टर्स और होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर नाम से ही पता लग रहा है, द वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में जैसे कैरम बोर्ड आप खेलते हैं तो जितनी सारी कॉइन्स होती हैं दे आर ऑन द सेम प्लेन, तो वो कोप्लेनर है। या बहुत सारे लोग जमीन पे सोए हुए हैं तो वो एक ही प्लेन में सो रहे हैं। ओके, सो कोप्लेनर वेक्टर्स आर लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। देखिए 1 2 3, A vector, B vector, C vector. So these all are in the same plane. So they are known as coplanar vectors. कोप्लेनर के अलावा कोटर्मिनस में आपको बता चुका हूँ, कोइनिशियल आपको बता चुका हूँ, एंड देयर इज वन मोर लास्ट वेक्टर and that is known as orthogonal vectors. Orthogonal vectors. Orthogonal vectors आप जानते हैं, orthogonal vectors which are represented by the axis, coordinate axis, यानी x axis, y axis और z axis की तरफ जो भी अगर vectors हैं, they are orthogonal. Orthogonal vectors are represented by the directions of coordinate axis. These are orthogonal vectors. तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको सब बता चुका हूँ, निगेटिव, फ्री, कोप्लेनर, कोटर्मिनस। सो टुडे हमने आज वेक्टर्स क्या होते हैं, और एक लास्ट में चीज आपको फिर से याद दिला दूं मैं कि आप हमेशा याद रखें कि वेक्टर मतलब होता है, ये जीवन में याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैं एक वेक्टर ए ले रहा हूँ, ए वेक्टर, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ, ये दो दीवारें खींच दी। आपको याद है ना, ये अनारकली को दीवारों के बीच में चुनवा दिया था अकबर ने, क्योंकि वो वेक्टर थी और दीवारों के बीच में जैसे ही चुनवाया क्या हुआ, वो मूव नहीं कर पा रही थी, तो वो स्केलर क्वांटिटी बन गई। ये ऐसे एग्जाम्पल है, आपको शायद अच्छा ना लगे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि किसी की मूवमेंट अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड ही रहता है, वो स्केलर बन जाता है. एंड दिस इज डायरेक्शन. डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर. इट मीन्स मैग्नीट्यूड पता ही है एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर. तो हमेशा याद इसको रखिए. और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें. और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो तो भी मैं आपको बताऊंगा. जैसे एक्सियल वेक्टर मैंने बताया था, तो एक्सियल वेक्टर में ये देखिए डायरेक्शन है, ये वेक्टर की डायरेक्शन है और ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है. एंड इफ यू आर टेकिंग द डायरेक्शन डाउनवर्ड देन इट इज क्लॉकवाइज. ये आप याद रखिए. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर. किसकी डायरेक्शन है बच्चों, ये एक्सियल वेक्टर. सो खुश रहें, स्टे सेफ, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, माता पिता की सेवा करें, अच्छा खाएं और आराम से रहें. थैंक यू वेरी मच.